پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر اسے نشانہ بنایا اور فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی ڈرون کو مار گرایا۔ جی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی ڈرون نیکرون سیکٹر میں گرایا گیا۔ یورپی یونین نے بھی اقوام متحدہ امن مشن میں پاکستانی فوج کی خدمات کا بھرپور اعتراف کیا۔ کانگو میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاکستانی سپاہی عامر اسلم کو ڈگ ہیمر اسکواڈ ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اقوام متحدہ امن مشنز میں پاک فوج کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کانگو میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاکستانی سپاہی عامر اسلم کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈگ ہیمر اسکواڈ ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے خلاف واضح ثبوت آ چکے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف کیس میں کوئی ابہام نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس کی صورتحال سمیت سیاسی اور معاشی امور پر انہیں بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ بجٹ کے خدوخال اور چینی انکوائری رپورٹ سے متعلق بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کا چینی اسکینڈل پر تحقیقات اور رپورٹ پبلک کرنا تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مافیاز نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے، سیاست میں رہ کر کرپٹ سیاستدان مافیاز کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف واضح ثبوت آ چکے، ان کے کیس میں کوئی بھی ابہام نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کو اتنے عرصے سے لوٹا جا رہا ہے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ مجھے عوام اور کمزور طبقے کی فکر ہے۔ کرونا پر حکومت نے بہترین اقدامات کیے۔ کرونا کی صورتحال سے معاشی عدم استحکام پیدا ہوا۔ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ دوسری جانب آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی تیاریوں میں تیزی کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعظم نے باقاعدگی پر اس پر بجٹ پر بریفنگ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے ملاقات کی اور ملکی معاشی صورتحال سمیت بجٹ کی تیاری سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو کی۔ قومی احتساب بیورو نے 2 جون کو اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق کرونا وبا کے پیش نظر تحقیقاتی ٹیم اور شہباز شریف کے درمیان ٹیبل پر گلاس وال تنصیب کر دی گئی، جہاں پر تمام انٹرویو روم کو باقاعدگی سے جراثیم کش سپرے سے صاف کیا جا رہا ہے۔ نیب کے ممبران سوال و جواب کے دوران سماجی فاصلہ اختیار کیے رکھیں گے۔ نیب اعلیٰ افسران کی جانب سے تمام ٹیم ممبران کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایس او پیز کے تحت شہباز شریف کو مفصل سوال نامہ گزشتہ پیشی پر فراہم کرتے ہوئے مناسب وقت بھی دیا گیا تھا۔ کرونا وائرس کے وار تیز ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے مسیحاؤں کی تعداد 5 ہو گئی۔ لاہور میں 2، ہنگو، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں ایک ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا۔ پی ایم اے گوجرانوالہ نے سینئر ڈاکٹر کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے یوم سیاہ منایا۔ لاہور جنرل اسپتال کے ایم ایس بھی وبائی مرض کا شکار ہو کر آئسولیشن میں چلے گئے۔ کرونا سے زندگی کی بازی ہارنے والے لاہور کے ڈاکٹر میں ثنا فاطمہ اور سلمان طاہر شامل۔ ڈاکٹر ثنا فاطمہ ایف سی پی ایس جبکہ سلمان طاہر ایم بی بی ایس 4th ایئر کے طالب علم تھے۔ نجی لیبارٹری میں کام کرنے والی 39 سالہ سینئر ڈاکٹر ثنا فاطمہ 20 مئی سے نجی ہسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھیں، جو آج طبیعت بگڑنے کے باعث خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے فوت ہونے والوں کی میت کی تدفین کے حوالے سے ایس او پیز جاری۔ معاون خصوصی صحت ظفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا سے وفات پانے والے شخص کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ غسل دیا جا سکتا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ثقافت میں، ہمارے مذہب میں اگر جنازہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، اس کی تدفین صحیح طریقے سے نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور بجا طور پہ۔ تو اس حوالے سے جو چند بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل جو ہے آپ اس ہدایت نامے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے جی کہ جب کوئی شخص خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام تر وہ احتیاطیں کریں جو کہ ہم ایک مریض
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ईद से पहले वाला लॉकडाउन शेड्यूल बहाल कर दिया गया। दोनों सूबों में इतवार तक बाजार बंद रहेंगे। पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। पंजाब में ईद से पहले वाला लॉकडाउन शेड्यूल बहाल कर दिया गया। आज से इतवार तक बाजार बंद रहेंगे। पीर से जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि आइंदा हफ्ते पीर से जुमेरात तक कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दी गई है, जबकि बाकी दिनों में बाजार बिल्कुल बंद रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के बायस स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार, कारोबारी सरगर्मियां महदूद होकर रह गईं। जुमा हफ्ता इतवार के रोज कारोबार बंद होने से ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। देखते हैं शुएब हाशमी की इस रिपोर्ट में। कोरोना के बायस स्मार्ट लॉकडाउन ताहाल बरकरार है। जुमा हफ्ता और इतवार के रोज अशाए खुरोनोश, मेडिकल स्टोर्स, फल और सब्जियां, गोश्त और दूध की दुकानों के अलावा बाकी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। 3 रोज कारोबार बंद होने से ताजिर बरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत कारोबार के लिए वक्त और दिन बढ़ाए। तंग करने वाली बात है, आवाम को भी और गाहक को भी परेशान करना, दुकानदार को भी परेशान करना। 10 नहीं तो 8 बजे तक तो टाइम देना, आराम से कस्टमर फ्रेंडली टाइम निकलेगा। इतनी गर्मी में गाहक किधर निकलेगा? अगर टाइमिंग हुकूमत करे तो ये मगरिब के बाद का टाइम रखे, क्योंकि गर्मियों में हमेशा कस्टमर मगरिब के बाद 11 बजे तक निकलता है। कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर कब बहाल हों, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। कैमरामैन शहबाज एजाज के साथ शुएब हाशमी, टीवी टुडे, लाहौर। अवाम के लिए खुशखबरी, महकमा रेलवे का 31 मई के बाद एडवांस बुकिंग जारी रखने का फैसला। महकमा रेलवे के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान चलाई जाने वाली 15 ट्रेनों की एडवांस बुकिंग जारी रहेगी। ट्रेनों की टिकट्स के बुकिंग ऑफिस सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रेलवे के तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट को हिदायत भी जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। तर्जमान के मुताबिक चीफ जस्टिस घर से अहम अदालती अमूर सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी हालत बेहतर हो रही है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया, जिसके बाद वो आइसोलेशन में चले गए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाने का कोई फौरी तौर पर इरादा नहीं। मुल्क में मुआशी सरगर्मियां जारी रखने की ज़रूरत है। मुतल्लक़ हुकूमती या वज़ीर आज़म के जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस कुछ बड़े शहरों के हस्पतालों पर दबाव की इत्तलात हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हस्पतालों में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। पंजाब असम्बली का इजलास 5 जून को निजी होटल लाहौर में तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया। रूल्स 235 और F12 के तहत क्रिस्टल और रॉयल ग्रैंड हॉल चैम्बर डिक्लेयर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना SOPs के तहत अराकीन का सिटिंग प्लान तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 57 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 1317 हो गई, जबकि मजीद 2636 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 64,028 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2636 केसेस रिपोर्ट हुए और मजमूई तौर पर 22,305 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं, जहां तादाद 25,309 है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलोचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, आज़ाद कश्मीर में 227 केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना दुनिया भर में 3,62,000 इंसानी जानें निकल गया। मरीजों की तादाद 59,05,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 59,05,415 हो गई और 3,62,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 25,79,916 अफराद सेहतयाब हो गए। अमरीका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,03,000 से बढ़ गई और कोरोना के मरीजों की तादाद 17,68,000 से ज्यादा है, जबकि न्यूयॉर्क में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां 3,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 23,200 से ज्यादा अमवात भी हो चुकी। ब्राजील अमेरिका के बाद 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया और केसेस की तादाद 4,15,000 तक जहां पर पहुंच चुकी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे। आवाम के लिए खुशखबरी, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई, जिसके मुताबिक पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता करने की सिफारिश की गई। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे सस्ता करने की, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिज़ की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। अवाम का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने से बहुत सी अशिया सस्ती हो जाती हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए तक कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए तक कमी हो सकती है। अवाम का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत कम हैं, इस लिहाज से पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर होना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं। वजीर आजम को चाहिए कि पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा सस्ता करके अवाम को रिलीफ दें। सर ये पेट्रोल जाना चाहिए कम से कम 40 तक, ताकि हर बंदा गरीब से गरीब जो घर भी बैठे हैं ताकि वो भी अपना पेट्रोल वगैरह डला के काम शाम पे जा सके। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल तकरीबन 50 रुपये होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। कम से कम 40 से 50 होना चाहिए पेट्रोल, ठीक है ना। ये हुकूमत की मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो पहले भी हालात ऐसे जा रहे हैं हमारे मुल्क के, ठीक है ना। तो कम से कम पेट्रोल की कुछ तो हमें फैसिलिटी सहूलत मिलनी चाहिए ना। कारोबार कुछ नहीं है। जबकि पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत के लिहाज से पाकिस्तान में तेल फी लीटर 35 रुपए होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि लॉकडाउन की वजह से महाना सेल आधी हो गई है। बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सब कारोबार बंद हुए हैं तो इस पे भी इफेक्ट पड़ा है, सेल पे इफेक्ट पड़ा। हमारी सेल थी पहले इस फिरोजपुर रोड पे थी 30 से 35 हज़ार लीटर एक दिन की, अब वो आ गई है 18,000 15,000। ऐसा भी दिन आया हमने 4,000 लीटर सेल किया। अब देखो मेरे पास लड़के थे 72, अब 4,000 लीटर में उनके भी पर डे वेजेस निकालें तो खुद देखो कितना नुकसान हुआ मालिक को। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान है तो दूसरी तरफ आवाम की ख्वाहिश है कि पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए मिले। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। एहतसाब अदालत ने तोशा खान रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया, जबकि आसिफ जरदारी को हाजिरी से सस्ता मिल गया। 11 जून को तलब किया गया है। नैब की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गनी मजीद को गिरफ्तार करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को 11 जून को तलब कर लिया। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को सिर्फ आज की हाजिरी से सस्ता दे रही है। आइंदा समाअत पर आसिफ अली जरदारी हर सूरत में अदालत में पेश हों।
یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ سے تعلق ہے، نہ کبھی غیر قانونی کام کیا، نیب زدہ نہیں نیب زدہ ہوں، وزیر اعظم کچھ صوبوں کا نہیں پورے ملک کا ہوتا ہے، بطور اسپیکر اور وزیر اعظم ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ سے تعلق ہے، نہ کبھی غیر قانونی کام کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر 31 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی حکومت نے کورونا کی صورتحال کے پیش نظر 31 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں بہت سی چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹڈی دل کا معاملہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ریلیف کمشنر پنجاب عبور حیات تارڑ اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی راجہ خرام شہزاد کی ٹڈی دل کے حوالے سے مشترکہ پریس کانفرنس۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے علی طارق کی اس رپورٹ میں۔ ریلیف کمشنر پنجاب بابر حیات کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث ٹڈی دل کی وبا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے اس پر فوکس کیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں گزشتہ سال جون میں ٹڈی دل نے بعض اضلاع کو متاثر کیا۔ چولستان کے بعد یہ تھوڑا سا وہاں سے آگے نکلی اور ٹڈی جو ہے وہ ہمارے مختلف اضلاع میں اس وقت بھی ہمارا ٹوٹل جو 8,70,000 ہیکٹیئر جو ہے اس کے اوپر ہمارا سروے ہوا اور یہ 1,05,000 ہیکٹیئر کے اوپر ٹڈی پائی گئی اور وہاں پہ اس کا تدارک کیا گیا۔ پنجاب کے تقریباً 15 اضلاع میں ٹڈی دل نے جزوی نقصان کیا، جبکہ 8,70,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر سپرے کیا گیا ہے۔ ٹڈی دل افریقہ سے ہر سال آتی ہے، اس کی بڑی منزل چولستان ہے۔ یہ افریقہ میں سہارا کے صحرا کے وہاں کا کیڑا ہے۔ یہ گراس ہاپر جو ہوتا ہے آپ کا، اس کی ایک قسم ہے۔ اس کے اندر ایک ماؤنٹن لوکسٹ ہوتا ہے، ایک ڈیزرٹ لوکسٹ ہوتا ہے اور ایک دو اور قسمیں ہیں۔ یہ وہاں پہ اس کی بریڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے یہ مشرق کی طرف پرواز کرتی ہے۔ بتاتے ہوئے کہا کہ 20 سے 25 سال بعد ٹڈی دل کا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ماڈل بنایا ہے اس میں PDMA اور زراعت کے ساتھ فوج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ صوبائی سطح پہ ریلیف کمشنر کا عہدہ PDMA اور محکمہ زراعت، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آرمی بھی بعد میں شامل ہوئی تیسری فیز کے اندر، جو بھی اسپرنگ والا آپریشن تھا۔ یہی ریپلیکیٹ ہوتا ہے ضلع میں ڈپٹی کمشنرز اس کو ہیڈ کرتے ہیں ایز دی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈز، ان کے ساتھ محکمہ زراعت ہے۔ ریلیف کمشنر بابر حیات نے ٹڈی دل سے پھیلنے والی خبروں کو بھی مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اخبارات میں تباہی کے حوالے سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے غلط ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ علی طارق، TV ٹوڈے لاہور۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری، فرانسیسی ٹیم کا ایک بار پھر جائے حادثہ کا دورہ، 7 روز بعد 50 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ایئر بس کمپنی کی جانب سے کراچی طیارہ حادثہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ فرانسیسی ماہرین مزید معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک بار پھر جائے حادثہ پر موجود، جہاں پر ان کے ہمراہ پاکستانی ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ طیارہ حادثہ کیس میں شہداء کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ 36 افراد کو 10 لاکھ فی کس معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ بقیہ مسافروں کے ورثاء کو بھی 1-2 دن میں معاوضہ ادا کر دیا جائے گا۔ لواحقین کی 15 فیملیز نے فی الوقت معاوضہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کراچی طیارہ حادثہ، وزیر اعظم عمران خان کو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ حکومت کا اب تک ہونے والے تمام طیارہ حادثات کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سول ایویشن حکام پر اظہار برہمی کیا، کہا کہ جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو حادثات کی وجوہات جاننے کا حق حاصل ہے۔ رپورٹ پبلک ہوگی تو مستقبل کے لیے مؤثر اقدامات ہو سکیں گے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ طیاروں کو پیش آنے والے حادثات کی رپورٹس میں کسی کو بچایا نہ کسی کو پھنسایا جائے گا۔ 22 جون کو پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ کراچی میں طیارے کا یہ حادثہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور ذمہ داران کون ہیں، اس سے پوری قوم کا تعلق ہے۔ سعودی حکومت کا عمرہ اور زیارت پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ، سعودی وزارت حج کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ معمولات زندگی بحال کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر صورتحال بہتر ہونے پر مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ سعودی حکومت کا عمرہ اور زیارات پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ۔
मुल्क भर में रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान अमरीकी डॉलर एक मरतबा फिर बुलंदियों की तरफ जाने लगा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में बिलतरतीब अमरीकी करेंसी ₹1.70 और ₹1.12 महंगा हो गया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस की तादाद के बाद मुल्की मईशत मुश्किलात का शिकार है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तोगोदो कर रही है। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में भी डॉलर 80 पैसे इजाफे से ₹161.80 पर पहुंच गया था। फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो गई, जहां पर निगार खानों से वाबस्ता सैकड़ों टेक्नीशियंस और फनकार काम न होने के बायस भूख और फाकों पर मजबूर हैं। बच्चों का पेट पालने के लिए हालात की चक्की में पिस कर रह गए। लाहौर से शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है। हुकूमत ने भी फनकारों टेक्नीशियन के लिए कुछ न किया, स्टूडियो भी वीरान हो गए। फनकारों टेक्नीशियंस का कहना है कि हुकूमत ने भी हमारे लिए कुछ न किया। ये स्टूडियो लैंड जी बिल्कुल बंद हो गई है। ये कोई चहल पहल नहीं की, कोई कारोबार नहीं का। अरे वेले बैठे नहीं वह ही है जी। बड़ा काम था यहाँ पे, सजरा प्यार से लेके तो काम ही काम था, मगर यहाँ के लोग बेकार होके बैठ गए हैं बेचारे। कुछ पकोड़े लगा के बैठ गया, कोई किसी की मुलाजमतें कर रहा है। सबके दौर में बहुत अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। अब आप देख रहे कि मजबूरी यहाँ तक आ गए कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ और अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का किराया मैंने देना है। तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब को कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सोचे, हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचे। टेक्नीशियंस और फनकारों का कहना था कि हुकूमत ने हमें कोई रिलीफ फंड नहीं दिया। मुल्तान रोड पर वाक़या लाहौर के 3 बड़े फिल्मी स्टूडियो जहां दिन रात फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, आज वीरानियों का शिकार हैं। इससे वाबस्ता सैकड़ों टेक्नीशियन भी फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब मौसम की महकमा मौसम
मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 5 रोज तक बादल बरसेंगे। शमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जेहलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा और भक्कर में बारिश मतवक्के है, जबकि खुशाब, मंडी, बाउदीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी अब्र करम बरसेगा। और अब टूडेज इंटरनेशनल। लद्दाख में गैर कानूनी तमीरात पर भारत को लेने के देने बढ़ गए। चीन ने कश्मीर के इलाके अक्साइशन पर भी फौजी कुव्वत बढ़ा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन लद्दाख में मुतनाज़ सड़क पर पुल की तामीर रोकना चाहता है। चीन ने एयरपोर्ट पर मिलिट्री कुव्वत में इजाफा कर लिया। लद्दाख में भारतीय फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। वादी के 3 पॉइंट्स और पेंगोंग झील पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने। लद्दाख के इलाके में भारत और चीन तनाज़ा शुरू हुए 1 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में सियाफाम शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुश्तिल अफराद ने कई गाड़ियों और दर्जनों इमलाक को आग लगा दी। रियासत मिनेसोटा में ये फसादात 46 बरस के जॉर्ज को दिन दहाड़े सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक करने पर किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने इस दौरान तोड़फोड़ की और दुकानों में लूट मार भी की, जिस पर मुकामी पुलिस को शेलिंग करना पड़ गई। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौर इक़्तिदार इजहार राय की आज़ादी के लिए बदतरीन दौर रहा। इसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त सामने आई जब मिनेसोटा पुलिस में मुजाहिरों की कवरेज करने वाले सहाफ़ी को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ी अपनी गिरफ्तारी की वजह पूछता रहा। पुलिस एहलकार खामोशी से हथकड़ी लगाकर ले गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करने से मुतल्लिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर की समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर को बंद करने की धमकी। सोशल मीडिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट कंपनियों से मुतल्लिक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसके तहत सोशल मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं खेल के मैदानों से। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर हैक हो गया। दिल बर्दाश्त होकर सोशल मीडिया ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हैकर ने नाज़ेबा वीडियो लाइक की। मुझे अपनी फैमिली का ज़्यादा अजीज़ है, आइंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूँगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच और साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है, तकलीफ दे और शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक दूसरे से राबिते करने का जरिया है। किसी को इससे तकलीफ हुई है तो माज़रत खां हूँ। T20 वर्ल्ड कप कब होगा? आईसीसी इजलास में फैसला ना हो सका। 10 जून के इजलास में दोबारा गौर किया जाएगा। आईसीसी अरकान ने क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। वर्ल्ड T20 के मुस्तकबिल पर फैसले किए होने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड इजलास ने तनाज़े का शिकार हो गया, जिसके बाद गैर रवायती अंदाज में इजलास के तमाम एजेंडे मौखर कर दिए गए। आईसीसी बोर्ड में राजदारी की खिलाफ वर्जी पर रुकन ममालिक ने नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई। आईसीसी के चेयरमैन की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में T20 वर्ल्ड कप के मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले।